Praise the Lord. Hallelujah. Shalom, shalom, shalom. Greetings in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Adonai Elohim El Shaddai, mighty God of Israel, the Holy One of Israel. Bless you all in the name of Yahushua HaMashiach, in the blessed name of Jesus Christ, the King of glory. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you. Lord, we ask your holy presence to come. We ask your holy presence to move upon us, Lord, as we worship, as we glorify your name, and as we draw nigh unto the banqueting table of your word. Hallelujah. Lord, may your Holy Spirit illuminate your word to us, Lord. Hallelujah. And may your Holy Spirit anoint us in a fresh manner. Lord, we pray for Sister Millie Sagal from Australia. Even now, Lord, I pray that you would minister to her. Heal her body, heal her mind, heal her soul. May your presence flow, Lord. Lord, may your presence flow over her body. Restore her body, Lord. Restore her body, Holy Spirit, through the precious blood of the Lamb. I bind her with the healing covenant, the precious healing covenant, which is in the blood of the Lamb, which is in the flesh of the Lamb. The body broken for our sins, the body bruised for our iniquities. May the scourges of Jesus heal Millie Sagal right now. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you. We praise you. We praise you. Glorify your name, Lord. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. Lord, we draw nigh unto you. Lord, we ask you to cleanse us in the blood of the Lamb. Cleanse us, wash us, purify us in the blood of the Lamb. Lord, purge us in the holy blood. Purge us, Lord, 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 in the holy blood. Holy blood, holy blood, holy blood of Yahusha. Holy blood of Yahusha. Purge us in the holy blood of Yahusha. Cleanse us in the holy blood, holy blood, holy blood. I invoke the blood over your people. I invoke the blood. Lord, I invoke the blood. I speak the blood. I unleash the blood. I invoke the blessing that is in the blood. The cleansing, the healing, the delivering power that lies in the blood. I invoke that power of the blood over your people. The power, the power, the power. The resurrection anointing in the blood over your people, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु जी, मैं तेरे इन सब लोगों को तेरे हजूर में लाता हूँ। आई प्रे फॉर लीना डेविडसन्स चिल्ड्रन। लॉर्ड, आई रिलीज द अनॉइंटिंग ओवर देम. Lord, I ask you to deploy angels around them to draw them to you. May they walk in your ways. May every curse be broken over their lives through the blood of the Lamb. And Lord, I pray for Ravi Prakash Gupta. Bless him, bless his household, Father. I release your anointing, your presence. I bless Robbie John from Firozpur, Lord. Bless him, bless his parents. Bless his brother who lives in Italy and his household, Father. And I pray, Father, that people that he ministers among, may they be blessed, Father. In the name of Jesus, I pray for Daisy V.S. also for your blessing, Father. Lord, I bless Richa Masi. May you surround her with your presence. May you draw her heart to you. May you teach her your deep things. And may you transform her into a woman of God. Thank you, Father, for Darshan Singh from Jalandhar. Bless his children, bless his wife. खुदावन तेरा खून मैं दर्शन सिंह के घराने पे छिड़कता हूँ. I cover brother Amrish Kumar under your blood. I speak blessing and anointing and favor over Jasveer Singh Surinder. I speak your blood. I speak your anointing, Lord Jesus. I pray for Sabi Sujit, his father and mother. I speak anointing, healing,
divine restoration. Lord, I bless Durgesh Kumar. I cover him under your blood. I speak your presence and anointing. And I bless Karamjit Kaur. I bless her household, family, Lord. May your blessing flow in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, over Rajat Masi, Lord. Tanuja Seth, I cover her under the blood of the Lamb. Hallelujah. And we pray for Himachal Pradesh, for your spirit to move. And for Renu Samuel, Lord. Lawrence Gill, I cover him under your blood. Release your anointing and your presence over Sahil's father in Pakistan. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हमद करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम्द करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। Lord Jesus, I speak journey mercies over Lawrence Gill as they travel, Lord. Keep them safe in Mumbai under your blood, Lord. Hallelujah. We bless you. We bless you, Lord. Hallelujah. तेरे बिना यस्सु कोई ना चारा, तेरे बिना मेरा कोई ना सहारा। मैं पापी तू बख्शन हारा, मैं पापी तू बख्शन हारा। तेरे बिना यस्सु कोई न सहारा, तेरे बिना यस्सु कोई न सहारा। मैं पापी तू बख्शन हारा, मैं पापी तू बख्शन हारा। Lord, I lift up Sister Reena Khan from Delhi. I lift up her husband Raman Khan and their daughters, Lord, and Brother Raman's mother and his brother, whole household, Lord. I lift them up before your throne of grace and mercy. Bless them, Lord. Visit them by your angels and through your presence, Lord. I pray, Lord, open doors for Brother Raman and for his daughters, Lord, that they can achieve, Lord, what their hearts delight in. Lord, I speak blessing and anointing and favor. Lord, I speak the blessed hand of Yahushua HaMashiach. Father, in the name of Jesus, bless everyone that has logged on, everyone that is hearkening unto the voice of your servant. May it not be the voice of man, may it be the voice of the Most High God. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Thank you, Lamb slain from the beginning of the universe, Lamb seated at the right hand of the Father, ruling and reigning in majesty. We bow before you. I bow before the Lamb. I bow before the Lamb who has purchased us from different kindred, different tribes, different languages, in different times down through the ages with his precious blood.
Hallelujah. And He has clothed us in His glory. He has given us the raiment of His righteousness. Hallelujah. We thank you, Father. We thank you for Yahushua HaMashiach. Hallelujah. तेरे लहू की जय हो, तेरे पवित्र लहू की जय हो, तेरे पवित्र लहू की जय हो, तेरे पवित्र लहू की जय हो यीशु मसीह। तेरे लहू की ब्लेसिंग को प्रभु जी मैं इन्वोक करता हूँ। आई इन्वोक द ब्लेसिंग ऑफ द ब्लड, आई इन्वोक द ब्लेसिंग ऑफ द कवेनेंट। फादर, मे ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द ब्लड कवेनेंट बी अनलीश्ड। हालेलुया। May your people delve deeper to fathom, discern and know through experience the power that lies in the blood. May they understand the mystery of the glorious blood of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु तेरे लहू की जय हो। Lord, as we meditate on your word, Lord, open up your word. Break the bread of life, Lord, and lighten our soul. Flood our heart, Lord, with the warmth of your love. Lord, this is the inward light that is broken on the inside when you break your word and give to us. So we look to you, Lord, this day. Spirit of the Most High, move now. In Jesus' glorious name, amen. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन में से एक बहुत अद्भुत संदेश आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। आज भी हम साम 1 पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। साम 1 की अभी हमने 3 वर्सेस पे मेडिटेट किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। We bless your holy name. Bless your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक वचन पढ़ें। टर्न टू द बुक ऑफ एपिसल ऑफ गलेशियंस। गलतियों की पत्री जो प्रेरित पौलुस ने लिखी, आइए उसके ऊपर मनन करें। एक वचन को मैं उसमें से लेना चाहता हूँ। गलतियों की पत्री 4 अध्याय का हम पढ़ेंगे 26 वचन। सुनिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। बट जेरूसलम विच इज अबव इज फ्री, विच इज द मदर ऑफ अस ऑल। हालेलुया। कौन है हमारी माता? परमेश्वर के वचन के अनुसार गलतियों 4 के 26 में जो लिखा है, हमारी माता कौन है? क्या लिखा है यहाँ पे? But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. यरूशलेम हम सबकी माता है। हालेलुया। हम सबकी माँ है यरूशलेम। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ डीप बातें आज बताना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक और यिर्मयाह की पुस्तक, परमेश्वर के ये दोनों जो नबी हैं, ये इज़राइल को वॉर्न करते हैं। आपको मालूम, यिर्मयाह परमेश्वर का अद्भुत दास 40 साल पहले इज़राइल को बताने लगा कि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़का है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे से शोकित है, और परमेश्वर अपने क्रोध के कारण पूरे राष्ट्र को, सदर्न किंगडम को, जूडा को, पूरे राष्ट्र को परमेश्वर असीरी में भेज देगा। परमेश्वर के वचन में मैं आपको अक्सर बताता हूँ, 4 बातें हैं वचन में, पढ़िए। ओवर 70 टाइम्स दे आर रिपीटेड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। परमेश्वर क्या कहता है इसराइल को कि अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, अगर तुम मेरे हुक्मों की, मेरी विधियों की, मेरी चितौनियों की, मेरे स्टैच्यूज़ की, मेरी कमेंडमेंट की, अलग अलग हिब्रू वर्ड्स हैं इसके लिए। मैंने इसमें एक मैसेज दिया है, यूट्यूब पे है। 8 अलग अलग वर्ड्स जो हिब्रू में यूज़ किए गए हैं। परमेश्वर की कमेंडमेंट, परमेश्वर के स्टैच्यूज़, परमेश्वर की डिक्रीज़, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का दबार, परमेश्वर का वर्ड। अगर तुम नहीं मानोगे और तुम उस वाचा को जो मैंने तुम्हारे साथ बांधी,
उसे अपने पाँव के नीचे कुचलोगे। और परमेश्वर क्या कहता है, इफ यू विल वर्शिप बेल एंड ग्रोव्स, बाल और ग्रोव्स, इंग्लिश का वर्ड है ग्रोव्स, जिसे पंजाबी और इंग्लिश में कई जगह ट्रांसलेट किया ट्रीज। तुम पेड़ों के नीचे जाके उपासना करोगे और बालीमों की उपासना करोगे। ये बहुत गहरा भेद है पूरे पुराने नियम में, बहुत गहरा भेद। ये दो वर्ड्स की स्टडी कीजिए, बेल एंड ग्रोव, बेल एंड ग्रोव, बेल एंड ग्रोव। आपको मालूम, बाबुल से, बेबीलोन से जब वो बाबुल का बुर्ज बना रहे थे, वो दुनिया की पहली वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है। और उस दुनिया का, उस पूरी सिविलाइजेशन का 70 जेनेटिक पूल्स हैं वहाँ पे। 70 जेनेटिक पूल्स, नूह के 3 पुत्रों में से 70 मुख्तलिफ कौमें हैं वहाँ पे, जेनेसिस चैप्टर 10 में। आपको मालूम, जेनेटिक साइंस ये मानती है कि देयर आर 70 बेसिक जेनेटिक पूल्स। आउट ऑफ ईच जेनेटिक पूल देयर आर several hundred types depending on how the genomes got crossbred, लेकिन बेसिक 70 जेनेटिक पूल्स हैं। और परमेश्वर ने, मैंने आपको पहले बताया, बाबुल के बुर्ज को देखने परमेश्वर उतरा। वो सेक्रेड स्पेसेस थे, सेक्रेड स्पेस। आपको जोसीफस, आपको मालूम क्या लिखता है अपनी बुक एंटीक्विटी में? जोसीफस लिखता है कि निम्रोद बाबुल का बुर्ज इसलिए बना रहा था क्योंकि वो यहोवा के खिलाफ बलवा कर रहा था। आपको मालूम, पुराने नियम में निम्रोद एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नाम है जो हिब्रू नहीं है, इट्स एन अकेडियन वर्ड। और मैंने आपको बताया जेनेसिस चैप्टर 10 वर्स 5-6 में, जहाँ पे लिखा निम्रोद बिगैन टू बी अ माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड। द हिब्रू वर्ड बिगैन टू बी के लिए हिब्रू वर्ड है खलाल, जिसका मतलब है जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक म्यूटेशन। निम्रोद ने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया अपनी बॉडी के साथ। ही डिड नॉट रिमेन टू बी अ मैन, वो पूरी तरह मनुष्य बाकी नहीं रहा। अगर आप एक्स्ट्रा बिब्लिकल बुक्स हैं, जो बुक्स कैनन के अंदर थी, जिस तरह हनूक की पुस्तक नंबर 1 और जिस तरह जशर की पुस्तक है और जुबली की किताब है, ये कुछ पुस्तकें हैं एक्स्ट्रा बिब्लिकल हैं, नॉन कैनोनिकल हैं, लेकिन ये बुक्स जूइश लोग पढ़ते थे। फर्स्ट सेंचुरी के बिलीवर्स के भी पास थी, वो पढ़ते थे। अर्ली चर्च फादर इनके विषय में लिखते हैं। 325 निसियन क्रीड जब कॉन्स्टेंटाइन ने डिक्री बनाई, उसके बाद बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी गई। दे डिस्ट्रॉयड, दे बर्न्ट बुक्स, दे डिस्ट्रॉयड, दे वांटेड टू एलिमिनेट एवरी जूइश वेस्टेज विद क्रिश्चियनिटी। तो खैर वो दूसरा सब्जेक्ट है। तो परमेश्वर ने उन 70 वॉचर, जिनके साथ डिवाइन काउंसिल, जिसके साथ परमेश्वर उतरा, जब उसने कहा आओ हम नीचे चले और देखें बाबुल का बुर्ज, वो 70 जो वॉचर थे उनके हवाले वो दुनिया कर दी परमेश्वर ने। 70 जेनेटिक पूल, एक एक जेनेटिक पूल के ऊपर एक एक वॉचर रूल कर रहा है। ऊपर जो फ़ज़ा है, इफिसियों 6:12 में जो प्रेरित पौलुस लिखता है, पावर्स, प्रिंसिपैलिटीज़, अथॉरिटीज़ एंड स्पिरिचुअल विकेडनेस। परमेश्वर ने मानव जाति को त्याग पत्र दिया, डिवोर्स दिया। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 18 से आगे पढ़ें, प्रेरित पौलुस उसी बात का जिक्र कर रहा है। डिट्रॉनमी 32 वर्स नंबर 8 and 9, डिट्रॉनमी 4 वर्स नंबर 19। इफ़ यू स्टडी द स्क्रिप्चर केयरफुली, you will find that God surrendered the whole mankind into the custody of those watchers. वॉचर कौन है? आपने कभी पढ़ा वचन में? दानियल नबी की पुस्तक पढ़िएगा। दानियल नबी की पुस्तक में 3 जगह वॉचर्स का जिक्र आया है। नबूकदनेस्सर राजा एक जानवर बन जाएगा और 7 समय उस पर गुजरेंगे जानवर की तरह। ओस उसके ऊपर गिरेगी, वो एक जानवर के स्वरूप में बदल जाएगा। ये फैसला वॉचर ने लिया है। रीड डैनियल। देयर आर सो मेनी मिस्ट्रीज दैट आर बेरिड इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल ओनली नो इफ़ यू डेल्व डीपर। आपको मालूम, जब डैनियल प्रेयर करता है
तो गैब्रियल जिब्राइल फरिश्ता उसे आके कहता है, तेरी प्रार्थना परमेश्वर के प्रियजन उस दिन ही सुनी गई जब तूने यहोवा की ओर अपना मुंह करके प्रार्थना करनी शुरू की। पर 21 डेज आई वॉज हेल्ड अप। कहाँ पे? सेकंड हेवन में। किसने उसको होल्ड किया हुआ था? द प्रिंस ऑफ पर्शिया। परमेश्वर के वचन में इफिशियंस चैप्टर नंबर 3 में लिखा है, द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर दैट रूल्स and controls everything. That prince, that spirit, that watcher that was ruling over Persian territory hindered Gabriel and did not allow him carry the answer of Daniel's prayer to him. Then God had to dispatch Michael, and Michael the archangel waged a war and let Gabriel go and deliver the message to the servant of the Lord. तो ये जो वॉचर ऊपर से, और उसने, गैब्रियल ने क्या कहा डैनियल से? गैब्रियल ने डैनियल से कहा, उसको मैसेज देने के बाद ये कहा, आई नाउ गो बैक टू द सेम जोन वेयर द वॉर इज बीइंग वेज्ड, नाउ द प्रिंस ऑफ पर्शिया विल गो एंड द प्रिंस ऑफ ग्रीस विल कम। ये वॉचर रूल कर रहे हैं। आप साम 82 देखिए पढ़ के। साम 82 में यहोवा परमेश्वर की सुप्रीम कोर्ट लगी है, जिसमें यहोवा परमेश्वर इन वॉचर्स का न्याय कर रहा है। हालेलुया। तो खैर, मैं आपको लेके आना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर इस्राएलियों से ये कहता है 70 टाइम्स से ज़्यादा, एक फ्रेज़ है कि जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मेरे वचनों को नहीं सुनोगे, यू विल नॉट ओबे मी, if you when you will turn your back on me, you will not hearken unto my commandment, you will not listen to my holy prophets, and you will do the bidding of your heart. Then God says, I will send the sword, I will send the famine, and I will send the sword, I will send the famine, and I will send the pestilence. It is repeated in the entire Old Covenant. And God did send the sword, the Lord did send the famine, the Lord did send the pestilence. प्रभु कहता है, मैं तेरे ऊपर तलवार भेजूंगा, अकाल भेजूंगा और मरी भेजूंगा। अभी पृथ्वी पे जो चल रहा है वो तीसरी चीज है, मरी, प्लेग, पेस्टिलेंस। और फिर चौथी बात प्रभु कहता है, आपको मालूम सोड का मतलब क्या है? सोड का मतलब इज़राइल के खिलाफ अन्य जाति के देश उठ के आएंगे और हमला करेंगे। पढ़िए इज़राइल की हिस्ट्री, 1 सैमुएल, 2 सैमुएल, 1 किंग्स, 2 किंग्स, 1 क्रॉनिकल्स, 2 क्रॉनिकल्स, और प्रॉफिट की बुक्स पढ़िए। यही स्टोरी है। वो परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर अन्य जातियों के राजाओं को उभारता है, वो उनके ऊपर आके हमला करते हैं, उन्हें ऑप्रेस करते हैं। फिर परमेश्वर फैमिन भेजता है, फिर परमेश्वर पेस्टिलेंस भेजता है और इजरायलियों को सजा देता है। प्रभु कहता, अगर तुम इन तीनों से नहीं माने, देन आई विल सेंड द बीस्ट। बीस्ट भेजूंगा, सुनिए ध्यान से, हिंदी पंजाबी में लिखा जंतु भेजूंगा, लेकिन बीस्ट का मतलब समझिए क्या है। बीस्ट का मतलब है वर्ल्ड एम्पायर, संसार के साम्राज्य, वो तुम्हें गुलाम बना के ले जाएंगे। ये 4 सजाएं परमेश्वर बनी इस्राएल को देता है। हालेलुया। द sword, the famine, the pestilence, and then he says, if you will not hearken unto me, you will continue in your wicked and evil ways, then I will send the beast, then I will send you into exile. मैं तुम्हें गुलामी में भेजूंगा। जिर्मिया ये प्रोफेसी करता रहा, 40 साल करता रहा, लेकिन उसकी सुनी नहीं बात उन्होंने, क्योंकि झूठे नबियों का बोलबाला था। राजा जो थे इज़राइल के, वो भ्रष्ट थे, करप्ट थे, यहोवा के मार्गों पे नहीं चलते थे, और उन राजाओं ने अपने राजमहल में झूठे नबी रखे थे। वो सरकारी नबी थे और वो झूठ बोलते थे और परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट करते थे और लोगों को मोटिवेशनल प्रीचिंग देते थे। देखते हैं आज अब मोटिवेशनल प्रीचिंग होती है। अभी बहुत से पास्टर अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, पासवान से लाइफ कोच कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्रेनर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लोगों को जो गॉस्पल पसंद है, जो मैसेज पसंद है,
वो लोगों को डिलीवर करते हैं। सीकर सेंसिटिव गॉस्पल। तो प्रभु का बंदा बार बार क्या कहता था? यशाया पढ़ेंगे वचन में एक टर्म कहता है डॉटर ऑफ बेबीलोन, हे बेबीलोन की बेटी, बेबीलोन की बेटी। आपको मालूम प्राचीन समय में एक बड़ा जो शहर होता था या बड़ी कोई कंट्री होती थी, उसके संग जो छोटे छोटे देश होते थे या बड़े शहर के इर्द गिर्द छोटे छोटे शहर होते थे, जो बड़ा शहर होता था उसे कहा जाता था मदर सिटी, मदर सिटी। और छोटे जो शहर होते थे उनको डॉटर कहा जाता था उस प्राचीन समय में। मदर सिटी और छोटे शहरों को कहा जाता था डॉटर्स, बेटियां बोला जाता था। आपको मालूम, मैंने आपको बताया कि सारा सीक्रेट जो छिपा है बाइबल में वो है बालीम, बाल एंड ग्रोब। ये बाबिलोन से शुरू हुआ है। निम्रोद और सेमिरामिस उसकी पत्नी और उनका बेटा तमूज। ये ही पूरे विश्व में, हर संस्कृति में, हर कल्चर में, हर सिविलाइजेशन में यही कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। बाल, सेमिरामिस एंड तमूज। बाबुल से दुनिया के सारे पंथ, दुनिया के सारे धर्म, दुनिया के सारे मार्ग वहीं से निकले हैं, बाबुल से। हालेलुया। और प्रभु इज़राइल को कहता है कि तू बाबुल की बेटी है। क्यों बाबुल की बेटी है? क्योंकि तू बाल की और ग्रोब की पूजा करती है। जिर्मिया नबी की पुस्तक पढ़ के देखिएगा, पूरे जिर्मिया में जिर्मिया इसी बात की चेतावनी इज़राइल को देता, बालिमों की और ग्रोब की, पेड़ों के पास जाके तुम उनकी पूजा करते हो। ये फर्टिलिटी कल्ट हैं, फर्टिलिटी, स्त्री और पुरुष की पूजा, और उनसे जो बच्चा पैदा होता है तम्मूज। ये बाल और ग्रोब, यहाँ से क्रिसमस निकला है। समझ रहे हैं आप? वो ट्री जिसे आप लगाते हो ना, ये वही ट्री है, ग्रोब। फर्टिलिटी कल्ट है ये। सुनने में कड़वा लगता है लेकिन सच्चाई यही है। जिर्मिया आपको मालूम क्या प्रचार करता है? जिर्मिया बहुत, जिसे आप बोलेंगे प्रॉप यूज़ करता है उनको मैसेज देने के लिए। जिर्मिया लकड़ी की योक बनाता है, योक जिसे जुआ बोलते हैं। लकड़ी का जुआ अपने कंधे पे डाल के जाता है, इज़राइल को बताता है कि तुम जुए में जाने वाले हो। लेकिन झूठे जो याजक हैं उस समय, वो याजक लोग उसके जुए को तोड़ देते हैं। तो उसके बाद परमेश्वर यहोवा जिर्मिया परमेश्वर यहोवा की हिदायत से लोहे का जुआ पहन के जाता है, और जिर्मिया प्रचार करता है कि तुम्हें परमेश्वर इस लोहे के जुए में जोत के बाबुल की गुलामी में भेजेगा और तुम वहाँ से छूट नहीं पाओगे। बाबुल की असीरी में तुम जाओगे, तुम जाओगे और तुम जाओगे, ये कहता है। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यीशु मसीह शैतान के जुए से हमें मुक्ति देने आया है। हालेलुया। संसार शैतान के जुए के नीचे जुता है। पाप का, अधर्म का, अंधकार का जुआ है इंटरनल, जिसके अंदर इंसान बंधा हुआ है और छूट नहीं सकता किसी भी रीति से। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह की सलीबी मौत उस जुए से छुड़ाती है। यीशु मसीह कहता, मेरा जुआ लो और मेरा जुआ हल्का है, मेरे जुए में तुम विश्राम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास जिर्मिया बताता रहा, तुम जाओगे गुलामी में, और उसने योक, जुआ, लोहे का पहन के इज़राइल को मैसेज दिया कि तुम जाओगे अवश्य। आपको मालूम, मदर को, माता को यूनानी भाषा में, ग्रीक में क्या कहते हैं? मेटर। माँ को बोलते हैं मेटर और पिता को बोलते हैं पेटर। और यही वर्ड आगे रिफाइंड होता है, मेटर से वर्ड निकलता है मेट्रो। मेट्रो का मतलब होता है माता। जब बोलते हैं ना मेट्रो ट्रेन, इसका मतलब होता है ट्रेनों की माँ। दिल्ली में है मेट्रो ट्रेन, इट मीन्स द मदर ऑफ ऑल ट्रेन्स।
मेट्रो मीन्स द मदर। इसीलिए जो बड़े शहर होते हैं, हब होती है बड़ी, उसे लोग आज भी मेट्रोप्लेक्स कहते हैं, मेट्रोप्लेक्स। तो मैंने आपको बताया हमारी मदर कौन है गलतियों की पत्री में, हमारी मदर है यरूशलेम, एंड शी इज़ फ्रॉम अबव, हालेलुया, वो ऊपर से है और हमारी माता है। मैं चाहता हूँ एक वचन पढ़ें आप, इब्रानियों की पत्री निकालें जल्दी से, इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय निकालिए, हीब्रूज चैप्टर नंबर 12, इब्रानियों 12, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 22 और 23 वचन पढ़ता हूँ। सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे। बट ई आर कम अनटू ज़ायन एंड अनटू द सिटी ऑफ द लिविंग गॉड, अनटू हेवनली जेरूशलम एंड टू एन इनन्यूमरेबल कंपनी ऑफ एंजल्स। अब देखिए ये टेक्स्ट कितना पावरफुल है। यहाँ पे परमेश्वर का दास, मैं मानता हूँ प्रेरित पौलुस ने ये लिखा है, परमेश्वर का दास कितनी अद्भुत बात बता रहा है। परमेश्वर का दास इजरायलियों के उस अनुभव के विषय में लिख रहा है। जब यहोवा परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ा कर ले आया, वो 2.5 मिलियन से 2.8 और 2.9 अलग अलग अनुमान हैं, 25 लाख, 28 लाख या 30 लाख के करीब लोग थे जिन्हें यहोवा परमेश्वर छुड़ा के लाया मिस्र के दास्तब से। और यहोवा परमेश्वर उन्हें कहाँ लेकर आया, देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, प्रभु का दास क्या लिख रहा है यहाँ पे। लिखता है, इसका मैं पढ़ूंगा आपके लिए, वर्स नंबर 18, फॉर ई आर नॉट कम अन टू माउंट दैट माइट बी टच्ड एंड दैट बर्न्ड विद फायर, नॉर अन टू ब्लैकनेस एंड डार्कनेस एंड टेम्पेस्ट एंड द साउंड ऑफ अ ट्रम्पेट, द वॉइस ऑफ द वर्ल्ड्स विच वॉइस they that heard entreated that the word should not be spoken unto them anymore। तो परमेश्वर का दास बता रहा है कि कितना भय योग्य नज़ारा था सिनेई पहाड़ के ऊपर। आपको मालूम ये सिनेई पहाड़ जो है भाई और बहनों, ये मिस्र में नहीं है, कैरो के पास नहीं है, ये सिनेई पहाड़ जो ओरिजिनल पहाड़ है, होरेब जिसे कहा है, ये पहाड़ है सऊदी अरेबिया में, इसे अल जबाल कहा जाता है। ये पहाड़ आज भी आग से जले हुए हैं। इस पहाड़ पे स्वयं यहोवा परमेश्वर की हजूरी उतर आई। और अगर आप उस टेक्स्ट को एक्सोडस के, निर्गमन के टेक्स्ट को, जब यहोवा परमेश्वर पहाड़ पे उतरा, अगर आप उसको ओरिजिनल टेक्स्ट में जाके स्टडी करेंगे तो वहाँ पे लिखा है यहोवा उस पहाड़ के ऊपर उतरा और आग लग गई, उस पहाड़ को आग लग गई और चारों ओर अंधेरा छा गया और बहुत तेज बिजली कड़कने लगी, बहुत तेज, और धरती डगमगाने लगी, कांपने लगी, अर्थक्वेक आने लगा और तुरी की बहुत बुलंद आवाज़, एंड द वॉइस ऑफ द वर्ड्स, आगे लिखा है 19 वचन में, विच वॉइस दे हर्ड एंड ट्रीटेड दैट द वर्ड शुड नॉट बी स्पोकन टू देम एनी मोर। या सृष्टि का रचिता स्वयं उस पहाड़ पे उतर आया। और आपको मालूम वहाँ पे क्या लिखा है, ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है, वो पहाड़ जब यहोवा की हजूरी पहाड़ पे उतर आई, वो पहाड़ हवा में उठ गया, लेविटेट करने लगा। वचन में लिखा है इजराइल की मंडली, वो 25 लाख 30 लाख के करीब लोग जो थे, वो पहाड़ के नीचे जाके खड़े हो गए। जो वहाँ पे ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है, वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि वो पहाड़ के पास नहीं बल्कि पहाड़ के नीचे, वो पहाड़ उठ गया, हवा में उठ गया यहोवा के प्रताप से, और वो पहाड़ के नीचे जाके खड़े हो गए। और यहोवा परमेश्वर जिसकी आवाज़ तुरियों की तरह है, महासमुद्रों के गर्जन की तरह है, वो अनादि परमेश्वर यहोवा पहाड़ पे उतर आया। अब आप वचन ध्यान से पढ़िएगा। ये इस्राएली लोगों की जो मंडली है, 25 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, पहाड़ के नीचे उतर आए हैं और इनके ऊपर यहोवा की हजूरी उतर आई है और वो पहाड़ हवा में उठ गया है और आग है भयंकर और घनघोर अंधेरा है और बिजली चमकती है और पृथ्वी नीचे से डोल रही है, क्योंकि स्वयं सृष्टि का स्वामी उस पहाड़ पे उतर आया है। आपको मालूम जितने लोग थे पहाड़ के नीचे, इजराइल की पूरी मंडली, वो सब परमेश्वर के तेज के साए के नीचे आ गए।
इसलिए कलाम में लिखा है कि उनमें से कभी 40 वर्ष वो बियाबान में भटकते रहे, उनमें से कोई भी कभी बीमार नहीं पड़ा, कोई भी रोगी नहीं हुआ, कोई कमज़ोर नहीं हुआ, कोई कभी थका भी नहीं, किसी के जूते घसे नहीं, किसी के कपड़े मैले हुए नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं यहोवा सृष्टि के स्वामी की हजूरी उनके ऊपर पड़ गई। और आप वचन को ध्यान से पढ़िए, उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई। ध्यान से पढ़ लो कलाम, वचन में ये लिखा, गॉड किल्ड देम, द लॉर्ड गॉड हैड टू किल देम, हिज प्रेजेंस सैचुरेटेड देयर bodies, their soul, their spirit, the every fiber of their being to such a degree. Hallelujah. तो प्रभु का दास क्या कह रहा है? प्रभु का दास इब्रानियों की पत्री में बड़ी अद्भुत बात कह रहा है। प्रभु का दास कह रहा है कि ये जो कलीसिया थी, इसे बियाबान की कलीसिया कहा गया है नए नियम में। ये 25-30 लाख लोगों की जो मंडली है, ये भी कलीसिया है बियाबान की, ये भी मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाई गई है। हालेलुया। और ये कलीसिया जो है, ये सच्ची कलीसिया का प्रतीक है। आपको मालूम कलीसिया कैसी होनी चाहिए? कलीसिया के ऊपर लहू होना चाहिए मेमने का, कलीसिया के ऊपर जलाल का बादल होना चाहिए, कलीसिया के ऊपर आग का खंबा होना चाहिए, कलीसिया के बीच में अबदी चट्टान होनी चाहिए जिसमें से जीवन के जल के सोते बहने चाहिए, कलीसिया के ऊपर मन्ना बरसना चाहिए। वो सच्ची कलीसिया है। और कलीसिया के आगे आगे यहोवा की हजूरी का दूत चलना चाहिए। हालेलुया। ये है ट्रू चर्च ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। तो वो बता रहा है कि ये बियाबान की कलीसिया है, बनी इसराइल। तो इनका कितनी अद्भुत बात थी ये। For they could not endure which was commanded, and if so much as a beast touch the mountain, it must be stoned or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. मूसा प्रभु का जन प्रभु से कहता है, हे परमेश्वर, मेरी हड्डियां भी, मैं कांपता हूं तेरे आगे बुरी तरह। I quake and I exceedingly fear, मैं डर रहा हूं तेरी पवित्रताई से। तो इब्रानियों की पत्री लिखने वाला उस अनुभव की बात कर रहा है इजराइल की, और उसको किसके संग जोड़ रहा? आगे बढ़ें। ये तो वो कलीसिया है बियाबान की जिनको ये अनुभव मिला। अब हमारे विषय में क्या कहता है सुने। बट ई आर कम अनटू माउंट जायन, कहता है वो तो आए थे सिनई पहाड़ के पास, पर तुम ऑलरेडी कहाँ पहुँचे हो? सिनई पहाड़ के पास पहुँचे हो। भाइयों और बहनों, आप ऑलरेडी सिनई पहाड़ के पास पहुंच चुके हो। कहां पे हो? सिनई पर्वत के पास। सिनई पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है, यहोवा का सिंहासन है। आपको ऑलरेडी पहुंच मिल गई है, एक्सेस मिल गई है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह की पारलौकिक मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा आपकी रिसाई है। The anchor of your hope lies beyond the veil. अब आप उस पहाड़ पे उस करुणा की जगवेदी के पास पहुंच सकते हो और उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हो। वचन में लिखा है, आप कहाँ पहुँचे हो? सियोन पहाड़ पे। आप सिनई पे नहीं पहुँचे हो। हम पहुँचेंगे नहीं, हम पहुँच चुके हैं। हम अपनी 40 दिन के उपवास से, अपनी भक्ति से, अपनी साधना से नहीं पहुंचेंगे, हम यीशु मसीह के अनुग्रह से पहुंच चुके हैं। लिखा 22 वचन, बट ई आर कम अनटू माउंट जायन, पर तुम तो सियोन पहाड़ पर पहुंचे हो। कौन? आप सभी। अगर बर्रे के लहू से धुले हो, यीशु मसीह के खून से धुले हो, परमेश्वर के कलाम और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, अगर पुराने इंसान को सलीब पे चढ़ाया आपने, अगर आप तंग मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं, अगर आप क्रूस उठा के चल रहे हैं, अपने आप को क्रूस पे अगर आपने चढ़ाया है, अगर आपने अपने आप का इनकार किया और प्रभु यीशु मसीह आप में जीवित है, तो आप सिनई पहाड़ पे पहुंच चुके हो ऑलरेडी। एंड अनटू द सिटी ऑफ लिविंग गॉड, और जीविते परमेश्वर के शहर में। कौन है जीविते परमेश्वर का शहर? मेट्रोपॉलिटन सिटी। हालेलुया। मेट्रोपॉलिटन सिटी। गलतियों की पत्री 4:26। हमारी माता कौन है भाइयों और बहनों? हमारी माता है नया यरूशलेम।
हालेलुया। आपको इसी अपनी माता की जय बोलना है। नया यरूशलेम क्या लिखा है? एंड अनटू द सिटी ऑफ लिविंग गॉड द हेवनली जेरूशलेम एंड टू द इन्यूमरेबल कंपनी ऑफ एंजल। आप कहाँ पहुँचे? आप सिनई पहाड़ पे पहुँच गए। आप दूसरी बात कहाँ पहुँचे? जीवित परमेश्वर के शहर में पहुँचे हो, जो हेवनली यरूशलेम है, स्वर्गीय यरूशलेम है। तीसरी चीज़ आप कहाँ पहुँचे हो? अनगिनत स्वर्गदूतों के बीच में खड़े हो आप, अनगिनत स्वर्गदूतों के बीच में। तीसरी बात। चौथी बात क्या है? टू द जनरल असेंबली एंड द चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, जो पहलौठी कलीसिया है, वहाँ आप पहुँच चुके हो। कौन है पहलौठी कलीसिया? ये वो कलीसिया है जिसमें हमारे बड़े भाई लोग हैं, पतरस, यकूब, यूहन्ना, एलिया, पतरस, यकूब, यूहन्ना, बरथोलोमियो, थद्दी, ये सब लोग हैं उस कलीसिया के अंदर। 120 लोगों से जो शुरू हुई, 3000, 5000, जो पहलौठों की कलीसिया है, उस कलीसिया में आप पहुंचे हो। टू द जनरल असेंबली ऑफ द चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न विच आर रिटन इन हेवन, जो स्वर्ग में जिनके नाम लिखे, एंड टू गॉड, और यहोवा के आगे पहुंचे हो आप, द जज ऑफ ऑल। लेकिन वो न्याय की कुर्सी पे बैठा है, ही इज द जज, एंड द स्पिरिट्स ऑफ जस्ट मैन मेड परफेक्ट। और उन रूहों के पास भी आपकी पहुंच है। किन की रूहों के पास? हनूक की रूह के पास, नूह की रूह के पास, एलिया की रूह के पास, मूसा की रूह के पास, जशाया, जर्मिया, ओबदाया, जोना, माइका, नहूम, हबक्कुक, मलाकी, जकराया, जपनाया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सब की रूहों के पास आपकी संगति है। ये कलाम कह रहा है, पढ़ लीजिए। कहता है एंड टू द स्पिरिट्स ऑफ द जस्ट मैन मेड परफेक्ट, वो धर्मी जो सिद्ध कर दिए गए हैं। और आगे किसके पास पहुंचे हम? 24 वचन, एंड टू जीसस द मीडिएटर ऑफ द न्यू कवेनेंट, और हम यीशु मसीह के पास पहुंच चुके हैं जो नई वाचा का विचोला है। हालेलुया। एंड टू द ब्लड ऑफ स्प्रिंकलिंग, उस लहू के पास पहुंचे हैं जो हाबिल के लहू से बेहतर बातें करता है। ये सुप्रीम कोर्ट है यहोवा का, ये दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जो सियोन पहाड़ पे लगता है। हम इसके पास पहुंचे हैं, ये हमारी माता है। हालेलुया। वी हैव रीच्ड हियर। हालेलुया। ये हमारी माता हमारे जीवन को रूल करती है, राज्य करती है। न्यू जेरूशलेम, आपको मालूम, परमेश्वर यहोवा इस्राएल का राजा है। परमेश्वर यहोवा इस्राएल पे रूल करता है, राजा है बनी इस्राएल का। यहोवा परमेश्वर बनी इस्राएल का राजा है। गॉड याहवे इज किंग ऑफ इजराइल, और उसका नाम है आई एम। मैंने आपको बताया हाइया अशर हाइया। उसने कहा मूसा से, माई नेम इज हाइया अशर हाइया, मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम द सेल्फ एग्जिस्टेंट वन, मैं अपने आप से मेरा वजूद कायम है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यहोवा को किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप से कायम है, अपने आप से अपने वजूद में कायम है। यहोवा परमेश्वर को रहने के लिए स्वर्ग की भी ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग को भी उसने बनाया, क्योंकि वचन में लिखा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। बेरशत बारा एलोहिम एत हशमायम वा एत हा अरट्स। यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी को और स्वर्गों को बनाया। उसने किसी समय बनाया स्वर्गों को, लेकिन यहोवा तो स्वर्गों को बनाने से भी पहले है। तो स्वर्गों को बनाने से पहले यहोवा परमेश्वर कहाँ रहता था भाई और बहनों? वो अपने आप में, अपने वजूद में। तो प्रभु का वचन बताता है यहोवा परमेश्वर ने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। यहोवा परमेश्वर ने उस प्यार से हमें प्यार किया जो प्यार कभी शुरू नहीं हुआ। एवरलास्टिंग लव का मतलब होता है ये वो प्रेम है जो कभी शुरू नहीं हुआ। देखिए, मैंने अपनी माता को प्रेम करना शुरू किया जब मैं पैदा हुआ जगत में। मेरी माता ने भी मुझे प्रेम करना शुरू किया। समझ रहे हैं आप? मेरे भाइयों ने, बहनों ने, मेरी पत्नी ने मुझे प्रेम करना शुरू किया। दुनिया के प्रेम की एक शुरुआत है, और दुनिया का प्रेम कई बार ख़त्म भी हो जाता है जब प्रेम की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। लेकिन यहोवा का प्रेम ऐसा है, उसने कभी हमें प्यार करना शुरू नहीं किया, ना कभी हमें प्यार करना ख़त्म करेगा, क्योंकि उसका प्यार इटर्नल है। हालेलुया। तो परमेश्वर किसे प्यार करता था स्वर्ग को बनाए जाने से पहले? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों एक दूसरे को प्रेम करते थे।
हालेलुया। तीनों, अगर जैसे कई लोग शिक्षा देते हैं कि यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए, यीशु मसीह ही पुत्र है, यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह ही पिता है, तो उनकी ये टीचिंग गलत हो जाती है। यहाँ पे आपको मालूम, बाइबल में पुराने नियम में आपको बहुत से हवाले मिलते हैं जहाँ दो यहोवा हैं, यहोवा पिता और यहोवा पुत्र। पुराने नियम में बाइनरी यहोवा प्रिंसिपल है। तो ये शिक्षाएं सब इंसान के दिमाग की उपज हैं, ये परमेश्वर की सच्ची शिक्षा नहीं है। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 56 वचन से अगर आप पढ़ेंगे, यहूदियों से बातें करता है और यहूदियों से कहता है बिफोर एब्राहिम आई एम। उसने ये नहीं कहा बिफोर एब्राहिम वॉज आई वॉज। जीसस सेड बिफोर एब्राहिम आई एम, इब्राहिम से पहले भी मैं हूं। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 बार ये वर्ड यूज करता, आई एम। आपको मालूम आई एम किसने यूज किया? आई एम यहोवा ने अपने लिए यूज किया। हाइया अशर हाइया, मैं जो हूं सो हूं। यीशु मसीह वही शब्द इस्तेमाल करता है, हाइया अशर हाइया। और नया नियम लिखने वाले जिन्होंने कोइनिया ग्रीक में लिखा है, वो लिखते हैं एगो एमे आए, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहूदियों को बता रहा है कि मैं इब्राहिम से पहले हूं। ईगो आई मी, आई एम ईगो आई मी। इब्राहिम ने मुझे देखा। और प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 2 वचन में स्टीफन यही प्रचार करता है कि हमारा पुरखा इब्राहिम जब मेसोपोटामिया में रहता था, तब यीशु मसीह ने, जलाली परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। आई एम गॉड, आई एम द किंग ऑफ द जूज, मैं यहूदियों का राजा हूं। आपको मालूम यहूदियों का राजा कौन है? यहूदियों का राजा है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। पहला सैमुएल, जल्दी से पढ़िए, पहला सैमुएल उसका 8 अध्याय, पहला सैमुएल उसका 8 अध्याय। चलिए जल्दी से, पहला सैमुएल 8 अध्याय में। हालेलुया। हिंदी में प्लीज़ लिखते जाइए बस वर्सेस। पहला सैमुएल 8 अध्याय, मैं शुरू से पढ़ता हूँ। पहला सैमुएल 8 अध्याय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से पढ़िए। एंड इट केम टू पास व्हेन सैमुएल वाज ओल्ड ही मेड हिज सन्स जजेस ओवर इजराइल। सैमुएल बूढ़ा हो गया तो सैमुएल ने जो काम खुद करता था किनको सौंप दिया? अपने बेटों को सौंप दिया। अब पढ़ें आगे। नाउ द नेम ऑफ द फर्स्ट बोर्न वाज जोसेल एंड द नेम ऑफ हिज सेकंड वाज आबिया। दे वर जजेस इन बेरशिबा। उसके 2 बेटे हैं सैमुएल के, जोएल एंड अबिया, और बेरशिबा में वो न्याय करते हैं। एंड हिज सन्स वॉकड नॉट इन द वेज बट टर्न्ड असाइड आफ्टर लुकर एंड टुक ब्राइब्स एंड परवर्टेड जजमेंट। तो सैमुएल एक जज है, न्यायी है और प्रभु का नबी भी है। तो उसके बेटे भी वही काम करने लगे, लेकिन उसके बेटे यहोवा के मार्गों में नहीं चले। वो दौलत इकट्ठी करने लगे, लोगों से घूस लेते थे, पैसे लेते थे। टुक ब्राइब एंड परवर्टेड जजमेंट, उन्होंने न्याय भी गलत किया। प्रभु के आत्मिक कामों में भी लोगों से घूस खाने लगे, पैसा लेने लगे। और लिखा है, देन ऑल द एल्डर्स ऑफ इजराइल गैदर्ड देमसेल्व्स टुगेदर एंड केम टू सैमुएल अनटू रामा एंड सेड अनटू हिम, बिहोल्ड thou art old and thy sons walk not in the ways. Now make us a king to judge us like all other nations. क्यों इजराइल ने राजा मांगा? क्योंकि सैमुएल ने अपने बेटों को यहोवा के मार्गों पे चलना नहीं सिखाया। सैमुएल जैसा अद्भुत बंदा नहीं है कोई। अगर सैमुएल का जीवन देखें, व्यवस्था के लिहाज से सैमुएल ने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन सैमुएल ने अपनी संतान को यहोवा परमेश्वर के मार्गों में चलना नहीं सिखाया। यही हाल एली का हुआ। एली के बच्चे लिखा लुच्चे थे। यही हाल हारून का हुआ। अबीहू नदाब दोनों ने यहोवा के आगे जाके स्ट्रेंज फायर चढ़ाया और यहोवा के हुजूर से आग निकली और उनको मार दिया। तो इज़राइल ने राजा मांगा। इज़राइल का राजा, अब अगर आप आगे पढ़ेंगे, इसका मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, इसी का आप पढ़िए
6 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा, बट द थिंग डिसप्लीज सैमुएल व्हेन दे सेड गिव अस अ किंग टू जज एंड सैमुअल प्रेड अनटू द लॉर्ड। सैमुअल को बुरा लगा, सैमुअल प्रभु से प्रार्थना करता है, तो प्रभु सैमुअल को कहता है, भाई इन्होंने तुझे थोड़ा त्यागा है, इन्होंने मुझे त्यागा है, तो इनको राजा दे दे। कौन इज़राइल का राजा था? पहला राजा यहोवा। शाऊल नहीं था पहला राजा, यहोवा इज़राइल का राजा सदा काल के लिए रहना चाहता था। लेकिन क्योंकि सैमुएल के बच्चे प्रभु के मार्गों पे नहीं चले, तो इज़राइल को एक बहाना मिला कि वो एक सेकुलर स्टेट बने। आपको मालूम, जब यहोवा राज्य करेगा तो थियोक्रेसी होगी। आप डेमोक्रेटिक नहीं बनेंगे, सेकुलर नहीं बनेंगे, क्योंकि यहोवा की विधियों के अनुसार चलेंगे। लेकिन ये सेकुलर स्टेट बन गया इज़राइल। इन्होंने यहोवा की जगह किसे चाह लिया? एक राजा ले लिया, शाऊल। 9 अध्याय पहले सैमुएल में शाऊल को राजा बनाया जाता है, 10 अध्याय में उसे सैमुएल अनॉइंट करता है, और 12 अध्याय में उसकी कॉरोनेशन की जाती है। 12 अध्याय में उसको ताज दे दिया जाता है, मुकुट दे दिया जाता है। तो मैं एक वचन देता हूँ आपको, पहला सैमुएल 12 अध्याय में आइएगा, पहला सैमुएल 12 अध्याय और उसका 10 वचन, 9 वचन से पढ़ते हैं। पहला सैमुएल 12 के 9 से सुनिए। एंड व्हेन दे फॉरगेट गॉड लॉर्ड देयर गॉड, ही सोल्ड देम इनटू द हैंड ऑफ सिसरा कैप्टन ऑफ द होस्ट ऑफ हेजोर, and into the hand of Philistines and into the hand of king of Moab, they fought against them। देखिए परमेश्वर क्या करता है, 9 वचन पढ़िए ध्यान से। सजा कैसे देता है? सोड के द्वारा दूसरी कौम के राजाओं को लेकर आता है सजा देने के लिए। ये सोड है यहोवा की। फिर क्या लिखा है 10 वचन में? दे क्राइड अनटू द लॉर्ड एंड सेड वी हैव सिन्ड बिकॉज वी हैव फॉरसेकन द लॉर्ड एंड हैव सर्व्ड बालीम एंड अश्तरोथ। एक देवता है और एक देवी है, इनकी पूजा है ये जो बाबेलोन से चली है। ये फर्टिलिटी कल्ट है, स्त्री पुरुष का। आपको मालूम, आप क्या बोलते हैं उनको, चलो मैं शाम को बताता हूँ उसके विषय में आपको। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, यहाँ पे क्या लिखा है? हमने क्या किया? बाल की और अश्तरोथ की, बाल और ग्रोब की पूजा की है। बट नाउ डिलीवर अस आउट ऑफ द हैंड ऑफ द एनिमीज एंड वी विल सर्व दी। हमें छुड़ा तो हम तेरी पूजा, तेरी आराधना करेंगे। तो 12 वचन पढ़ें। यहाँ लिखा है, व्हेन ही सॉ दैट नहाश द किंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एमोन केम अगेंस्ट यू, he said unto me, nay, but king shall reign over us, when the Lord your God was your king। कौन था राजा? यहोवा तुम्हारा राजा था। हालेलुया। भाई और बहनों, आपका राजा कौन है? मेरा राजा प्रभु यीशु मसीह है, मेरा राजा यहोवा है। हालेलुया। मेरे जीवन पे मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी प्रभु की सत्ता है, मेरे शरीर पे, मेरी आत्मा पे, मेरे प्राण पे, मेरे परिवार पे, मेरे घराने पे, मेरे जीवन के हर एक पहलू पे, मेरे जीवन के हर एक पहलू पे यहोवा राज्य करता है। मेरा घर, घराना, परिवार, जो कुछ यहोवा ने मुझे दिया है, हर एक चीज़ यहोवा की किंगशिप के नीचे है। यीशु मसीह मेरे जीवन की हर चीज़ के ऊपर राजा है, और मैं अपना जीवन उसके चरणों में सबमिट करता हूँ 24/7 365 days till the last breath I have in my body। my God, my king is यहोवा। मेरा राजा यहोवा। कई बार आप उसे प्रभु तो कहते हो लेकिन राजा नहीं कहते हो। कई बार आप उसे चंगा करने वाला तो कहते हो लेकिन राजा नहीं कहते हो। कई बार आप उसे बरकतें देने वाला तो कहते हो, राजा नहीं कहते हो। राजा रूल करता है आपके जीवन को। लोग अपनी मर्जी से अपना जीवन चलाते हैं, क्रिश्चियन लोग अपनी मर्जी से। एक जवान लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है, मर्जी से बॉयफ्रेंड ढूंढती है। एक जवान लड़का मर्जी से सुंदर लड़कियों को ढूंढता है, सुंदर से अपनी मर्जी से प्रोफेशन ढूंढता है, अपनी मर्जी से अपने काम करता है, अपनी मर्जी से एजुकेशन ढूंढता है जो वो कभी यहोवा को, परमेश्वर को अगर आप राजा मानते हो तो आप यहोवा की शरण में जाके यहोवा से पूछोगे कि आप क्या चाहते हो, मैं क्या बनूं? इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रभु का दास बनूं, या मैं सेकुलर काम करूं? प्रभु से पूछोगे आप, किससे मैंने शादी करनी है, कहाँ मैंने घर खरीदना है, कौन सा बिजनेस मैंने करना, कौन सा काम मैंने करना है। अगर राजा मानोगे तो राजा आपको निर्देश देगा। यहोवा इज़राइल का राजा बनना चाहता था, लेकिन इज़राइल नहीं चाहता था कि यहोवा राजा बने। क्या यीशु मसीह आपका राजा है? बताइए मुझे।
हालेलुया। राजा है, बताइए मुझे। राजा का मतलब वो आपके जीवन पे राज करेगा। आपके जीवन में कई जगह लिखा होता है, क्रिश्चियन घरों में डाइनिंग टेबल के पास प्रभु भोज की तस्वीर लगी होती है और वहाँ लिखा होता है क्राइस्ट इज़ द अनसीन गेस्ट। क्राइस्ट इज़ द अनसीन गेस्ट। मैंने यूएस में बोला जहाँ पे वो प्रिंट होते थे, और मेरे को बाद में पता लगा उन्होंने उसको चेंज किया। फिर उन्होंने पहले लिखा होता था क्राइस्ट इज़ द अनसीन गेस्ट, फिर उन्होंने किया क्राइस्ट इज़ द अनसीन होस्ट। क्राइस्ट अनसीन होस्ट भी नहीं है भाई और बहनों, क्राइस्ट किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। हालेलुया। वो राजा है, वो राज्य करेगा आपके जीवन के हर पहलू पे। आपके पैसे पे भी राज करेगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे भी राज करेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी राज करेगा, आपकी थॉट्स पे भी राज करेगा, आपके डिसीजंस पे भी राज करेगा। आप कुछ भी करेंगे, जीसस हैज टू रूल इफ यू मेक हिम द किंग। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु यशाया 44 वर्स नंबर 6 में? दस सेथ द लॉर्ड द किंग ऑफ इजराइल। प्रभु कहता है जो इस्राएल का राजा है, हिज रिडीमर द लॉर्ड ऑफ होस्ट, आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो गॉड। हालेलुया। मैं राजा हूँ, राजा हूँ, छुड़ाने वाला हूँ। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं पहला हूँ, मैं ही आखिरी हूँ, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ही इज़ द किंग ऑफ इज़राइल, इज़राइल का राजा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हो। और बहुत सी बातें मैंने कहनी है, मुझे लग रहा है कि समय ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री पढ़िएगा, 6 अध्याय का 2 वचन। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 2 वचन में क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि अपनी माता और अपने पिता का सेवा करना, आदर करना। और मैंने आपको बताया था हिब्रू में जब परमेश्वर 10 कमेंडमेंट देता है, 2 तख्तियों पे लिख के देता है। पहली तख्ती यहोवा की है, दूसरी तख्ती मनुष्यों की है। पहली तख्ती बताती है यहोवा से रिश्ता कैसे करना है, दूसरी टैबलेट बताती है मनुष्यों से रिश्ता कैसे रखना है। तो जो पहली तख्ती के अंदर पहली टैबलेट में 4 जो नियम हैं पहले, वो ये बताते हैं 4 आज्ञाओं के पहली तू अपने फादर एंड मदर। तो मालूम हिब्रू में